نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے کہا ہے کہ صحت و طبی سائنس کے شعبے میں ہندوستان نے اگرچہ نمایاں ترقی کی ہے، لیکن ہمیں اپنے سارے عوام کو اعلیٰ معیاری اور قابل دسترس طبی سہولتوں کی فراہمی کا دعویٰ کرنے سے پہلے مزید بہت کچھ کیا جانا چاہیے۔ حامد انصاری نے کہا کہ آزادی کے بعد سے ہم نے صحت و طبی سائنس کے شعبوں میں بہتر ترقی کی ہے۔ صحت و طب کی سہولتوں کی فراہمی کے معاملے میں آج ہمارا طبی شعبہ سرکاری و خانگی شعبوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری سطح تک بھی ریاستی حکومت کی طرف سے بالعموم مفت یا انتہائی کم قیمت پر طبی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ حامد انصاری نے کہا کہ صحت و طبی دیکھ بھال کا خانگی شعبہ بھی کافی وسیع ہے، جس میں انفرادی ڈاکٹرز اور ان کے کلینک سے لے کر جنرل ہاسپٹلز اور حتیٰ کہ سپر اسپیشلٹیز ہاسپٹل کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ ملک میں اب احتیاط انسداد کے اعلیٰ معیاری علاج دستیاب ہیں، جن کے ذریعے مختلف پیچیدہ امراض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ سرکاری طبی خدمات کے لیے فنڈز کے فقدان کے سبب عوام کی کثیر تعداد اپنے جیب سے مصارف ادا کرتے ہوئے خانگی شعبے سے خدمات حاصل کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ مستقبل میں یہ مسائل مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ مظفر نگر فسادات کے قصوروار بی جے پی کے 2 رکن اسمبلی سنگیت سوم اور سریش رانا کو اعزاز دیے جانے پر بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ مظفر نگر سمیت مغربی یو پی کے حالیہ فرقہ وارانہ فسادات کے قصوروار کو بی جے پی کی آگرہ ریلی میں نریندر مودی کی موجودگی میں عوامی سٹیج پر اعزاز دیے گئے تھے۔ بی ایس پی کی سربراہ مایاوتی نے جہاں بی جے پی کے نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، وہیں انہوں نے اکھلیش یادو حکومت پر بھی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ریاستی حکومت کو اس کا علم تھا کہ فساد برپا کرنے والوں کو عوامی ریلی میں اعزاز دیا جائے گا تو ریاستی حکومت کو ایسی ریلی کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے تھی اور فسادیوں کو اعزاز دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے انہیں روکنا چاہیے تھا۔ دریں اثنا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں امن و قانون کی حالت قطعی اچھی نہیں ہے اور فرقہ پرست عناصر ریاست کے فرقہ وارانہ ماحول کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مایاوتی نے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی پارٹی کو ایک ہی سکے کے 2 پہلو بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں پارٹیوں کی ساز باز سے ماحول خراب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی لگ بھگ 6 برسوں تک کیندر میں بھی بی جے پی کی ہی سرکار رہی ہے، تو تب اس پارٹی کی سرکار نے یہاں اتر پردیش میں یہ سبھی کاریہ پورے کیوں نہیں کرائے تھے جن کے بارے میں شری نریندر مودی یہاں اتر پردیش میں آ کر یہاں کی سمسیاؤں کی ہی اکثر گنتی گناتے رہتے ہیں، جبکہ صحیح معنی میں یہاں اتر پردیش میں ابھی تک جو بھی وکاس کے زمین پر کاریہ ہوئے ہیں وہ زیادہ تر بی ایس پی کے نیترتو والی۔ وزیر دفاع اے کے اینٹونی نے کہا ہے کہ 26/11 ممبئی دہشت گرد حملوں کے سازشوں کو پاکستان کی جانب سے سزا نہ دیے جانے تک ہندوستان مطمئن نہیں ہوگا۔ اینٹونی نے 26 نومبر 2008 کے ممبئی دہشت گرد حملوں کی 5ویں سالانہ یاد کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ پاکستان قاتلوں کے خلاف کارروائی کرے اور قاتلوں کو اعظم ترین سزائیں دے۔ واضح ہے کہ 5 سال قبل آج ہی کے دن 10 دہشت گردوں نے سمندری راستے سے ممبئی پہنچ کر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 160 افراد ہلاک اور دیگر سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ وزیر دفاع اے کے اینٹونی نے کہا کہ ممبئی حملوں سے قبل ساحلی سلامتی کا نظام انتہائی کمزور تھا، لیکن اب ہم ایک مضبوط و مستحکم ساحلی سیکیورٹی تیار کرنے کے قابل ہیں اور بہتر رابطہ بھی برقرار ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سپریمو ملائم سنگھ یادو کی 75ویں سالگرہ سماجوادی پارٹی کے کارکنوں نے ملائم کو وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچانے کے عہد کے ساتھ منائی۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے چک گنجریا میں 100 ایکڑ اراضی پر بنائے جانے والے اودھ شلپ گرام اور نیڈی سٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہاں کینسر انسٹی ٹیوٹ بنایا جائے گا اور دہلی ہاٹ کے طرز پر اودھ شلپ گرام کی تعمیر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی قیامگاہ سے تجارتی گاڑیوں کو آن لائن ٹیکس جمع کرنے کی اسکیم اور ریڈیو ٹیکسی اسکیم کا بھی آغاز کیا۔ سماجوادی پارٹی کے دفتر میں ملائم سنگھ یادو کی 75ویں سالگرہ کو یوم یکجہتی کے طور پر منایا گیا۔ پارٹی کے دفتر میں رنگا رنگ تقاریب ہوئی، جن میں مشاعرہ، کوی سمیلن و دیگر ثقافتی پروگرام ہوئے۔ اس موقع پر ملائم سنگھ یادو کی زندگی پر مبنی ایک کتاب کی رسم اجرا بھی ہوئی۔ پارٹی کے دفتر میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو، ان کی وزارتی کونسل کے رفقا کے علاوہ
समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े और छोटे लीडर हजारों की तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को मुबारकबाद देते हुए इनकी सलामती और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआएं की। वाज़ेह है कि समाजवादी पार्टी की तश्कील को 21 वर्ष मुकम्मिल हो गए हैं। मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी की तश्कील रखी थी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुनाकिदा तकरीब में मुलायम सिंह यादव बेहद जज्बाती हो गए। इन्होंने बेहद जज्बाती अंदाज में पार्टी के कारकुनों के सामने अपनी इस ख्वाहिश को रखा कि वो लोकसभा के इलेक्शन में 80 सीटों में से 75 सीटें इनको दिलाएं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मुल्क के साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नीब के 3 मुकदमात बहाल करते हुए वज़ीर आज़म हाउस में पोलो ग्राउंड की तामीर के मुकदमे में इन पर 9 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत ने रवां माह आसिफ अली जरदारी को उनके खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो में दर्ज मुकदमात के बारे में नोटिस जारी की थी। ज़राए के मुताबिक मंगल को एहतसाब अदालत ने समाअत के दौरान आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नायक को बताया कि उनके मौकिल के खिलाफ SGS कोटिकना, ARY गोल्ड और पोलो ग्राउंड की तामीर के 3 रेफरेंस खोलने का फैसला किया गया है। अदालत को बताया गया है कि पोलो ग्राउंड की तामीर के रेफरेंस में मुलजिम आसिफ अली जरदारी के वकील को मुतल्लका दस्तावेजात फराहम की जा चुकी हैं, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि 9 दिसंबर को आइंदा समाअत पर इस रेफरेंस में मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की जाए। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नायक का यह भी कहना था कि उन्हें कोटिकना केस में ताहाल रेफरेंस की कापी नहीं मिली है, जिस पर अदालत में मौजूद नेब के हुकाम ने उन्हें आइंदा चंद दिन में दस्तावेजात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। ARY गोल्ड रेफरेंस में आसिफ जरदारी के सदर बनने से पहले ही इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। चुनांचे अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए मुकदमे के गवाहान को नोटिस जारी कर दिए। क्वेटा में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अकबर बुगटी कत्ल केस में पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिश्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस मुकदमे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी सदर की जमानत मंजूर की हुई है, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट सलामती के खदशात की बुनियाद पर इस केस की समाअत इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। हुक्काम के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 में मुकदमे की समाअत के दौरान परवेज मुशर्रफ की जानिब से अदालत में हाजिरी से मुस्तशना करार देने की दरख्वास्त पेश की गई, जिसे अदालत ने रद्द करते हुए उन्हें आइंदा पेशी पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। परवेज मुशर्रफ के वकील इलियास सिद्दीकी ने बताया है कि वो आइंदा समाअत से कबल इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वाज़ेह है कि माजी में जब परवेज मुशर्रफ अपने फार्म हाउस पर नजरबंद थे तो इस दौरान अदालत ने मुताद्दद बार उन्हें क्वेटा लाकर पेश करने का हुक्म दिया, लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें पेश नहीं किया गया। अब जबकि साबिक सदर को उनके खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है, तो खुद उनकी जानिब से अदालत में हाजिर होने की शर्त ना रखने की दरख्वास्त दी गई थी। पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टरों की तंजीम ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ड्राइवरों पर तशद्दुद के वाक़यात के बाद पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले तमाम सामान की तरसील तहफ़्फ़ुज़ फराहम होने तक रोक दी है। इंसाफ की जानिब से इत्तेहादी अफवाज की सप्लाई रोकने के ऐलान और एहतजाज के दौरान रोनुमा हुए थे। कराची की दोनों बंदरगाहों के PT और पोर्ट कासिम से इत्तेहादी अफवाज के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारों और अफ़गान ट्रांसिट ट्रेड का सामान ट्रॉलरों और ट्रकों के ज़रिए तूर ख़म और चमन के रास्ते अफ़गानिस्तान पहुँचाया जाता है। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी दिल खान का कहना है कि तकरीबकारों और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये मालूम नहीं है कि ट्रॉलर पर लदा हुआ सामान नेटो का है या कमर्शियल है। कंटेनर तो एक ही तरह के होते हैं। हुकूमत ये गारंटी नहीं दे सकती कि गाड़ी को आग नहीं लगाई जाएगी या रॉकेट फायर नहीं होगा। इस सूरत हाल में ट्रांसपोर्टरों ने लोडिंग रोक दी है। पाकिस्तान ने देसी साख्ता पहले ड्रोन तैयारों को फौज और फिजाइया में शामिल कर लिया है। फौज ने उसे इंतहाई मौसर और कारकर्द करार दिया, जिसे मुख्तलिफ अगराज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना पायलट के तैयारों को जो निगरानी करने की भी सलाहियत रखते हैं, बुर्राक और शय पर नाम दिए गए हैं। फौज के मीडिया शोबे ने उसे एक तारीखी वाक़या करार दिया है। इन तैयारों के बारे में मज़ीद तफसीलात तो नहीं बताई गई हैं, ताहम बयान में ये कहा गया है कि मुस्तक़बिल में ये तैयारे मुख्तलिफ समाजी व माशी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
फौजी सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कहा कि इन ड्रोन तैयारों के जरिए ज़रूरत पड़ने पर फौज की असल ठिकानों पर हमले की सलाहियत बढ़ गई है। क़ब्ल-ए-अज़ीं अमेरिका ने ड्रोन तैयारे और ये टेक्नोलॉजी फराहम करने पाकिस्तान की मुतादिद दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। याद रहे कि पाकिस्तान के पास कई बिना पायलट के निगरानकार ड्रोन तैयारे मौजूद हैं, लेकिन बुर्राक और शैपर को पहली मरतबा पाकिस्तान में तैयार किया गया है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से होने वाले समझौते का दिफा करते हुए कहा है कि सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने और हंगामा करने से अमरीका महफूज नहीं हो सकता। जिनेवा में इतवार को ईरान और 6 आलमी ताकतों के माबैन 6 माह का एक अबूरी माहिदा हुआ, जिसके तहत ईरान ने इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी के बदले अपने कुछ जौहरी सरगर्मियों को कम करने पर इत्तेफाक किया है। बराक ओबामा ने पीर को सैन फ्रांसिस्को में एक तकरीब के दौरान मौजूदा मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा कि बहुत से चैलेंजेस अब भी हैं, लेकिन हम सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं कर सकते और हम दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए पुरअमन तरीक़ों को पस्ते पुश नहीं डाल सकते। इन्होंने कहा कि हम तशद्दुद के एक ना ख़त्म होने वाले दायरे में नहीं फंसना चाहते। शायद सियासी तौर पर सख्त बात और हंगामा करना आसान है, लेकिन ये हमारी सलामती के लिए ठीक नहीं है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से माहिदे को उमूमी तौर पर खुश आइंद करार दिया गया है, लेकिन इसराइल वज़ीर आज़म ने इसे एक तारीख़ी गलती कहा है। बाज़ अमरीकी सेनेटरों ने भी इस माहिदे पर तनक़ीद करते हुए कहा कि इसमें ईरान के साथ ज़्यादा नरमी बरती गई है। इन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने पर ज़ोर देने की धमकी भी दी है। लीबिया के मशरक़ी शहर बनगाज़ी में लीबियाई फ़ौज और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़पों में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक और 1 दर्जन ज़ख्मी हो गए। लीबिया की नई फ़ौज जो हुनूस ज़ेर तरबियत है, इस्लाम पसंद जंगजुओं और मलेशिया ग्रुपों के ख़ात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। ये वही ग्रुप्स हैं जिन्होंने मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ शोरिश में हिस्सा लिया था, लेकिन क़ज़ाफ़ी के ज़वाल के बाद इस्लाह तर्क करने और कब्ज़ा करदा इलाक़ों का कंट्रोल वापस करने से इनकार कर दिया था। बनगाज़ी में बंदूकों और धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और रास अबेदा इलाक़े से कसीर धुआं उठ रहा था। फ़ौज ने इलाक़े के साकिनीन को शहर की गलियों से निकल जाने का हुक्म दिया और रुख़सत पर जाने वाले सिपाहियों को शहर में वाक़े अपने यूनिट्स पर दोबारा तलब कर लिया। लड़ाई इस वक्त शुरू हुई जब फ़ौज के मसलह यूनिट ने एक इलाक़े में, जहाँ मुबैना तौर पर इस्लामी अस्करियत पसंद ग्रुप अंसार शरिया सरगर्म अमल है, एक शख्स का ताक़ुब किया। बनगाज़ी शहर के सिक्योरिटी अहदेदार ने ये बात बताई। ज़राए के मुताबिक बंदूकों की लड़ाई में कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। वाज़ेह रहे कि 1 साल क़ब्ल बनगाज़ी में अमरीकी कौंसलेट पर हमले के लिए अंसार शरिया को मौरद इल्ज़ाम ठहराया गया था। अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने अमरीकी हुकूमत की एक कौमी सलामती की मुशीर के साथ मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान सलामती के बाहमी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार किया है। इस माहदे के तहत 2014 के बाद हज़ारों अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रह सकेंगे। अमरीकी मंदूब सूज़न राइस ने अफ़गान सदर हामिद करज़ई को बताया है कि इनकी जानिब से आई इस माहदे को आइंदा साल तय करने की तजवीज़ काबिल अमल नहीं है। इससे क़ब्ल इतवार को अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मुनक़िदा लोया जरगे में शामिल अफ़गान अमायदीन ने अमरीका से सिक्योरिटी के माहदे की मंजूरी दे दी थी। जरगे में शामिल 2000 से ज़्यादा अमायदीन ने अफ़गान सदर हामिद करज़ई से कहा है कि वो रवां बरस के इख्तिताम से क़ब्ल इस माहदे पर दस्तखत कर दें। जरगे का ये मुतालबा सदर करज़ई के इस बयान से मुताबिकत नहीं रखता था जो इन्होंने जरगे से अपने खिताब में दिया था और जिसमें कहा गया था कि माहदे पर अप्रैल सन 2014 में होने वाले अफ़गान सदारती इंतखाबात से पहले दस्तखत नहीं होंगे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि सदर करज़ई ने माहदे पर दस्तखत करने के लिए नई शराइत ज़ाहिर की हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि सदर करज़ई फौरी तौर पर माहदा तय करने के लिए रज़ामंद नहीं है। सदर करज़ई के दफ्तर का कहना है कि सदर ने अमरीकी मंदूब से मज़ीद यकीन दहानी का मुतालबा किया है कि अमरीकी फ़ौज अफ़गान शहरियों के घरों पर छापे नहीं मारेंगे और अमरीकी तालिबान के साथ मुअत्तल हुए मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने में मदद करेगा।